رمضان المبارک کی آخری شام جیسے ہی اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے تو سب کی نظریں آسمان پر ٹک جاتی ہیں۔ ہر کوئی بے چینی سے اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے جب شوال کا چاند نظر آئے گا اور عید الفطر کی خوشیوں کا آغاز ہوگا۔ اچانک خبر آتی ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے اور اسی لمحے فضا خوشیوں کی آوازوں سے گونج اٹھتی ہے۔ مساجد سے تکبیرات کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں، گھروں میں مسکراہٹیں بکھر جاتی ہیں اور بازاروں میں ایک نئی سی زندگی دوڑ پڑتی ہے۔ یہی وہ دلکش لمحہ ہوتا ہے جسے مسلمان چاند رات کے نام سے جانتے ہیں، ایک ایسی رات جو عید الفطر کی خوشیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے، جس کی رونقیں رات گئے بلکہ فجر تک جاری رہتی ہیں۔ چاند رات دراصل رمضان المبارک کے اختتام اور عید الفطر کی آمد کا باضابطہ اعلان ہوتا ہے۔ پورا مہینہ روزے، عبادت اور صبر کے بعد جب یہ خبر ملتی ہے کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے تو دلوں میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا کر چاند کی مبارکباد دیتے ہیں اور گھروں میں خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی ہے۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر برِ صغیر کے ممالک نے چاند رات کو خاص ثقافتی اور سماجی اہمیت حاصل۔ یہاں یہ رات صرف ایک اعلان نہیں بلکہ خوشیوں، روایتوں اور رنگوں سے بھرا ایک تہوار بن جاتی ہے جس کا ہر کوئی بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ چاند رات کا سب سے دلکش منظر بازاروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آنے کی خبر پھیلتی ہے، بازاروں میں رش بھر جاتا ہے اور ہر طرف ایک میلے جیسا سما ہوتا ہے۔ شاپنگ مالز، گلیاں اور بازار روشنیوں سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ کپڑوں، جوتوں، چوڑیوں، جولری اور کاسمیٹکس کی دکانوں پر خریداروں کا ہجوم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آخری وقت میں عید کے کپڑے خریدتے نظر آتے ہیں۔ چوڑیوں کی دکانوں پر رنگ برنگی چوڑیوں کی کھنک سنائی دیتی ہے کہ مہندی لگانے والے سٹالز کے گرد لڑکیوں اور خواتین کا رش لگا ہوتا ہے۔ ہاتھوں پر خوبصورت مہندی کے ڈیزائن بنوائے جاتے ہیں جو عید کی خوشیوں کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ مہندی کی خوشبو، چوڑیوں کی جھنکار اور بازاروں کی چہل پہل چاند رات کی فضا کو اور بھی یادگار بنا دیتی ہے۔ چاند رات پر بچوں کی خوشی بھی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ بچے اپنے نئے کپڑے بار بار نکال کر دیکھتے ہیں، جوتے پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور عیدی ملنے کے خیال سے ہی خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ کئی بچے اپنے والدین کے ساتھ بازار جاتے ہیں تاکہ عید کے لیے کھلونے، ٹوپیاں یا دیگر چیزیں خرید سکیں۔ اس رات بچوں کے چہرے پر جو خوشی اور جوش نظر آتا ہے وہ چاند رات کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ گھروں کے اندر بھی چاند رات کی اپنی ہی الگ رونق ہوتی ہے۔ خواتین عید کے دن کے لیے مختلف روایتی پکوان کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ سیویاں، شیر خورما، کھیر اور مختلف مٹھائیاں تیار کی جاتی ہیں تاکہ عید کے دن آنے والے مہمانوں کی بہترین توازو کی جا سکے۔ کچھ گھروں میں اسی رات میٹھی سیویاں تیار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ گھروں کی خصوصی صفائی، کپڑوں کی تیاری اور عید کے دن کے انتظامات بھی اسی رات مکمل کیے جاتے ہیں۔ خاندان کے افراد اکٹھے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں اور آنے والے عید کے دن کے منصوبے بناتے ہیں۔ چاند رات دراصل شکر گزاری اور دعا کی بھی ایک خاص رات ہے۔ مسلمان رمضان المبارک کے پورے مہینے میں کی گئی عبادات پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کے روزے، نمازیں اور نیک اعمال قبول فرمائیں۔ بہت سے لوگ اس رات نفلی عبادات بھی کرتے ہیں اور اپنے محروم عزیز و اقارب کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس طرح چاند رات خوشیوں کے ساتھ ساتھ روحانی سکون کا بھی پیغام دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چاند رات کی رونقوں میں جدید رنگ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ آج کے دور میں لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں، ویڈیو کالز کرتے ہیں اور تصاویر شیئر کر کے اپنی خوشیوں کو دنیا بھر میں پھیلے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ ٹی وی چینلز اور ریڈیو پر بھی خصوصی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں جن میں چاند رات کی روایات اور عید کی تیاریوں کو دکھایا جاتا ہے۔ کئی شہروں میں اس رات خصوصی تقریبات اور میلے بھی منعقد کیے جاتے ہیں جہاں لوگ فیملی کے ساتھ جا کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یوں چاند رات صرف عید کے اعلان کی رات نہیں بلکہ خوشیوں، امیدوں، محبتوں اور خاندانی میل جول کا خوبصورت پیغام لے کر آتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رمضان کی عبادتوں کی خوشبو اور عید کی مسرتیں ایک ساتھ محسوس ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چاند رات ہر سال مسلمانوں کے دلوں میں ایک نئی خوشی، ایک نئی امید اور ایک خوبصورت یاد بن کر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ آج چاند رات ہے۔ لاہور کے مشہور تجارتی مرکز کریم مارکیٹ میں بھی غیر معمولی ہلچل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا،
बाजार लोगों से भर गया, हर तरफ खुशियों का समा है। फ्री मार्केट खास तौर पर मर्द रात की खरीदारी के लिए मशहूर है और इस वक्त यहाँ नौजवान और मर्द रात ईद के लिए नए कपड़े, जूते, सैंडल्स, बेल्ट्स, घड़ियां और दीगर मर्दाना फैशन की अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। जूतों की दुकानें इस वक्त सबसे ज्यादा मसरूफ हैं। मर्द रात चमड़े के जूते, सैंडल्स और रवायती खुसे खरीदने में लगे हुए हैं। हर स्टॉल पर खरीदार अपने पसंदीदा डिजाइन को पसंद करने, साइज चेक करने और मुंतखब करने में मसरूफ हैं। दुकानदार हर गाहक को अलग अलग डिज़ाइन दिखाकर मदद कर रहे हैं ताकि वो बेहतरीन इंतखाब कर सकें। नौजवान लड़के और मर्द हज़रात कई बार जूते पहनकर देख रहे हैं, कभी एक स्टाइल पसंद आता है तो कभी रंग या डिज़ाइन के बारे में मशवरा कर रहे हैं। कपड़ों की दुकानों पर भी रश अरूज पर है। शलवार कमीज़, कुर्ते, वेस्ट कोट और पैंट के स्टॉल्स पर हर जगह खरीदारों का हजूम है। बाज़ लोग अपने लिए ख़ास डिज़ाइन तलाश कर रहे हैं, जबकि कुछ वालिदैन की बड़ी तादाद भी अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े खरीदने में मसरूफ़ है। दुकानदारों का कहना है कि चांद रात करीम मार्केट के लिए साल की सबसे मसरूफ रात है। बाजार में इतर और परफ्यूम की दुकानें भी खरीदारों से भरी हुई हैं। नौजवान बड़ी दिलचस्पी से मुख्तलिफ खुशबुएं आजमा रहे हैं ताकि ईद के दिन एक मुनफरद खुशबू के साथ तैयार हो सकें। बेल्ट्स, घड़ियां और दीगर मर्दाना फैशन की अशिया भी खरीदने वाले यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। चांद रात के मौका पर महंगाई भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। कपड़ों, जूतों, सैंडल्स, बेल्ट्स और दीगर अशिया की कीमतें, कई खरीदार कीमतें बार बार चेक कर रहे हैं, लेकिन खुशियों के जज्बे के साथ खरीदारी जारी रखे हुए हैं। बाजार की तरफ ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया है। गाड़ियों की कतारें और पैदल चलने वालों का हजूम दोनों ही इतना ज्यादा है कि आगे बढ़ना बास मकामात पर मुश्किल हो गया है। इसी वजह से पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार बाजार के अहम पॉइंट्स पर मौजूद हैं ताकि रश और हजूम को कंट्रोल में रखा जा सके और खरीदार महफूज अंदाज में अपनी खरीदारी कर सकें। मजमूई तौर पर करीम मार्केट इस वक्त ईद की खुशियों का एक मुकम्मल मंजर पेश कर रही है। मर्द हज़रात की बड़ी तादाद, जूतों और कपड़ों की दुकानों पर रश, महंगाई के बावजूद खरीदारों की दिलचस्पी और बच्चों की खुशियों भरी हंसी बाजार की रौनकें चांद रात को यादगार बना रही हैं। हर शख्स अपनी पसंद की चीज़ खरीद कर ईद के दिन के लिए मुकम्मल तैयारियां कर रहा है और बाजार की हर गली, हर स्टॉल और हर दुकान में यही जोश व खरोश और खुशी देखने को मिल रही है। जैसे ही ईद का चांद नजर आने की खबर फैलती है, घरों में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है और बाजारों में रौनकें बढ़ जाती हैं। चांद रात दरअसल वो खास रात होती है जब लोग आखिरी लम्हात में ईद की तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए बाजारों का रुख करते हैं। इसी वजह से हर तरफ एक मेले जैसा समा नजर आता है। लाहौर के मसरूफ और मारूफ इलाके इचरा बाजार में इस वक्त चांद रात की रौनकें अपने अरूज पर हैं। बाजार लोगों से खचाखच भरा हुआ है, हर तरफ खरीदारों का रश है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पूरा शहर ईद की आखिरी खरीदारी के लिए यहाँ जमा हो गया है। बाजार की दुकानें रंग बिरंगी रोशनियों से सजी हुई हैं, जबकि दुकानदार भी खरीदारों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए मुसलसल आवाजें लगा रहे हैं। इस वक्त इर्द गिर्द का माहौल भी खासा दिलचस्प और पुरजोश नजर आ रहा है। हर तरफ लोगों की बातों की आवाजें, बच्चों की हंसी, कहीं से चूड़ियों की खनक सुनाई दे रही है तो कहीं दुकानदार ग्राहकों को अपनी दुकान की तरफ बुलाते नजर आ रहे हैं। ये सारी आवाजें मिलकर चांद रात के माहौल को मजीद खुशगवार बना रही हैं। कपड़ों की दुकानों पर गैर मामूली रश है। खवातीन और लड़कियां बड़ी तादाद में ईद के जोड़े खरीदने में मसरूफ हैं। कोई खूबसूरत प्रिंट वाले सूट देख रही है तो कोई कढ़ाई वाले मलबूसात पसंद कर रही हैं। कुछ खवातीन अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद रही हैं, जबकि नौजवान लड़कियां खास तौर पर अपने ईद के ड्रेस के लिए बेहतरीन रंग और डिजाइन का इंतखाब करने में मसरूफ नजर आती हैं। कई दुकानों के बाहर इतना ज्यादा रश है कि लोगों को अंदर जाने के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। जूतों की दुकानों पर भी खासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। लड़कियां और खवातीन अपने ईद के कपड़ों के साथ मैच करते हुए सैंडल्स, जूते और खुस्से खरीदने में मसरूफ हैं, जहां मुख्तलिफ डिजाइन के खुस्से पहनकर चेक किए जा रहे हैं। वहीं साथ मौजूद दोस्तों या घर वालों से राय भी ली जा रही है। छोटी बच्चियां भी अपनी माओं के साथ बड़ी खुशी के साथ छोटे छोटे जूते और सैंडल पसंद कर रही हैं। चूड़ियों और ज्वेलरी की दुकानों की एक अलग ही रौनक नजर आती है। रंग बिरंगी चूड़ियों से सजी दुकानों के सामने लड़कियों का हजूम है। लड़कियां अपने ईद के कपड़ों के मुताबिक चूड़ियां पहनकर देख रही हैं और बड़ी खुशी के साथ इन्हें खरीद रही हैं। जब लड़कियां चूड़ियां पहनकर देखती हैं तो इनकी हल्की सी खनक भी सुनाई देती है, जो इस माहौल को मजीद खूबसूरत बना देती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर भी लड़कियां अपने जोड़ों के साथ मैच करती हुई बालियां, हार और ब्रेसलेट पसंद किए जा रही हैं। मेहंदी के स्टॉल्स के सामने लड़कियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और वो बड़े शौक से अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही हैं। मेहंदी लगाने वाली खवातीन निहायत खूबसूरत और जदीद डिजाइन्स बना रही हैं। कुछ लड़कियां अपने पूरे हाथों पर मेहंदी लगवा रही हैं, जबकि कुछ सादा मगर नफीस डिजाइन बनवा रही हैं। मेहंदी की खुशबू भी फिजा को मजीद खुशगवार बनाए हुए है और लड़कियां एक दूसरे को अपने हाथ दिखाकर खुशी का इजहार भी कर रही हैं।
कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुकानों पर भी खवातीन की खासी तादाद मौजूद है। ईद के दिन के लिए मेकअप का सामान खरीदा जा रहा है। लिपस्टिक, नेल पॉलिश और दीगर ब्यूटी आइटम्स की खरीदारी करने वालों के साथ साथ इत्तर और परफ्यूम की दुकानों पर भी रश है, जहां लोग मुख्तलिफ खुशबुएं खरीद रहे हैं। खाने पीने के स्टॉल्स भी लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। गर्मा गर्म समोसे और पकोड़े, भटूरे, चाट और गोल गप्पों के स्टॉल्स पर लोगों का रश है। खरीदारी के दौरान लोग यहाँ रुककर कुछ खाते पीते भी नजर आते हैं। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स के स्टॉल्स पर भी नौजवान और बच्चे बड़ी दिलचस्पी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अगर मजमूई सूरत हाल पर नजर डालें तो इस साल महंगाई में खासा इजाफा होने के बाइस कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी और दीगर अशिया की कीमतें पहले की निस्बत ज्यादा हो चुकी हैं। मजमूई तौर पर इचरा बाजार में चांद रात एक खुशगवार फिजा कायम है। हर तरफ रोशनी, शोर, खुशी और रौनक नजर आ रही है। खरीदारों का रश, बच्चों की हंसी, चूड़ियों की खनक और दुकानदारों की आवाज़ें इस माहौल को मज़ीद जानदार बना रही हैं। लोग ईद की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारी कर रहे हैं और हर चेहरा खुशी और मुस्कुराहट से जगमगा रहा है। चांद नजर आते ही ईद की खुशियां भी अरूज पर पहुंच चुकी हैं और बाजारों में खरीदारों का समंदर उमड़ आया है। लाहौर के माल रोड पर वाक़े पैनोरामा सेंटर में पैर रखने की जगह मुश्किल से मिल रही है। हर तरफ गहमा गहमी है, दुकानें खरीदारों से भरी हुई हैं और नौजवान ईद की तैयारियों को आखिरी लम्हात में मुकम्मल करने के लिए कपड़ों, जूतों और परफ्यूम्स की खरीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। अगरचे इस साल महंगाई ने आवाम की जेब पर खासा बोझ डाला है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का जोश व खरोश कम नहीं हुआ। कोई नए कपड़े खरीद रहा है, कोई जूते पसंद कर रहा है, तो कोई परफ्यूम और दीगर लवाजमात लेकर ईद की खुशियों को दोबारा करने की कोशिश कर रहा है। चांद रात के मौका पर यह बाजार सुबह तक इसी तरह आबाद रहते हैं और ख़रीदार आखिरी वक्त तक खरीदारी करते दिखाई देते हैं। चांद रात दरअसल ईद की खुशियों की शुरुआत होती है और इसी वजह से बाज़ारों में ख़रीदारों का जोश व खरोश दीदनी होता है। पैनोरामा सेंटर में भी हर तरफ गहमा गहमी है और दुकानों पर ख़रीदारों का तांता बंधा हुआ है। नौजवान अपने अहले खाना दोस्तों के साथ बाजार में खरीदारी जारी रखे हुए हैं। मर्दाना कपड़ों की दुकानों पर सबसे ज़्यादा रश देखा जा रहा है, जहां नौजवान ईद के लिए नए डिज़ाइन के शलवार कमीज़, पैंट शर्ट्स, टी शर्ट्स और दीगर मलबूसात खरीदने में मसरूफ़ हैं। मार्केट में सादा शलवार कमीज़ की कीमत तकरीबन 3000 से 5000 रुपये तक बताई जा रही है, जबकि ब्रांड या बेहतर क्वालिटी के कपड़ों की कीमत इससे भी ज़्यादा है। इसी तरह जूतों की दुकानों पर ख़रीदारों की बड़ी तादाद मौजूद है। मुख्तलिफ डिज़ाइन और ब्रांड्स के जूते नौजवानों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। माल रोड पर वाक़े चश्मान मार्केट में आम जूतों की कीमत तकरीबन 2000 से 4000 रुपये तक है, जबकि कुछ महंगे जूतों की कीमत इससे भी ज़्यादा बताई जा रही है। परफ्यूम, घड़ियों और दीगर फैशन आइटम्स की दुकानों पर भी खासा रश है। नौजवान ईद के दिन के लिए परफ्यूम खरीदने में खसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। मार्केट में आम परफ्यूम की कीमत 1000 से 3000 रुपये तक बताई जा रही है, जबकि कुछ ब्रांडेड परफ्यूम्स इससे भी महंगे फरोख्त हो रहे हैं। मार्केट में मौजूद नौजवानों और बच्चों का जोशो खरोश भी दीदनी है। लोग नए कपड़े और जूते खरीदने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ चांद रात के माहौल से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बाजारों में रोशनियों और खरीदारों की चहल पहल ने ईद की खुशियों को मजीद बढ़ा दिया है। चांद रात की ये रौनकें दरअसल ईद की खुशियों का पेश खैमा होती हैं। अगरचा महंगाई के बाइस कीमतें बुलंद हैं, लेकिन बाजारों में मौजूद खरीदारों के चेहरों पर खुशी और जोश साफ नजर आ रहा है। लोग अपने प्यारों के साथ खरीदारी करके ईद के इस त्यौहार को यादगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाजारों की यही चहल पहल, खरीदारों का यही जोश और रोशनियों से जगमगाती ये रात इस बात का पैगाम दे रही है कि ईद सिर्फ त्यौहार नहीं, बल्कि खुशियों, मोहब्बतों और अपनायत को बांटने का नाम है। चांद रात की खुशियों ने लाहौर के तारीखी बाजार अनारकली को जगमगा दिया है। ईद का चांद नजर आते ही पूरा शहर जैसे घरों से निकलकर बाजारों का रुख कर लेता है और इस वक्त लाहौर के दिल में वाक़े अनारकली बाजार एक ऐसा मंजर पेश कर रहा है जहां हर तरफ रोशनी, रंग और खुशियों की चहल पहल दिखाई दे रही है। बाजार की गलियां जगमगाती लाइट से सजी हुई हैं, दुकानों पर खरीदारों का हुजूम है और यूं महसूस हो रहा है जैसे ईद की सारी खुशियां इसी बाजार में सिमट आई हों। इस वक्त अनारकली बाजार में चांद रात के मौके पर गैर मामूली रश देखने को मिल रहा है। बाजार की तंग गलियां खरीदारों से इस कदर भरी हुई हैं कि चलना भी मुश्किल हो रहा है। खवातीन, मर्द और बच्चे बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और हर कोई ईद के आखिरी खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहा है। हर तरफ कहकहे, बातों की आवाजें और खरीदारी की गहमा गहमी सुनाई दे रही है।
خواتین کی بڑی تعداد مہندی اور چوڑیوں کی دکانوں کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ مہندی لگانے والی خواتین کے گرد لڑکیوں اور خواتین کا ہجوم لگا ہوا ہے، جہاں عید کے لیے خوبصورت مہندی کے ڈیزائن بنوائے جا رہے ہیں۔ کئی لڑکیاں اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف ہیں، جبکہ ہاتھوں پر لگتی مہندی کی خوشبو پورے ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہی ہے۔ بانو بازار میں چوڑیوں کی دکانوں پر بھی غیر معمولی رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ شیشے کی رنگ برنگی چوڑیاں، ڈیزائن چوڑیوں کے سیٹ اور خاص طور پر کشمیری چوڑیاں اس وقت خواتین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ اس سال کشمیری چوڑیوں کا خاصا ٹرینڈ ہے اور خواتین بڑی دلچسپی سے انہیں خرید رہی ہیں۔ یہ چوڑیاں اپنی باریک کاریگری اور خوبصورت ڈیزائن کی وجہ سے عام چوڑیوں سے کہیں زیادہ مہنگی ہیں، مگر اس کے باوجود خریداروں کی دلچسپی کم نہیں ہوئی۔ کئی خواتین اپنے عید کے لباس کے ساتھ میچ کرتی کشمیری چوڑیاں تلاش کرتی نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح جوتوں کی دکانوں پر بھی خاصی رونق دیکھنے کو مل رہی ہے۔ خواتین سینڈلز اور ہیلز کے نئی ڈیزائن تلاش کر رہی ہیں، جبکہ نوجوان لڑکیاں اپنے ملبوسات کے ساتھ میچ کرتی خوبصورت جوتیاں اور سینڈلز خریدنے میں مصروف ہیں۔ مرد حضرات بھی عید کی تیاریوں میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ بچوں کے ہاتھوں میں غبارے اور کھلونے نظر آ رہے ہیں، جبکہ کئی بچے آئس کریم اور ٹھنڈے مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بازار میں جگہ جگہ عارضی اسٹالز بھی لگائے گئے ہیں، جہاں مہندی، جویلری، چوڑیاں اور دیگر عید سے متعلق اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں۔ تاہم اس خوشگوار ماحول کے ساتھ ساتھ مہنگائی کی شکایات بھی سننے کو مل رہی ہیں۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ اس سال چاند رات کی خریداری پہلے کی نسبت کہیں زیادہ مہنگی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو خریداری میں مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود عید کی خوشیوں کے باعث لوگ اپنے بچوں اور اہل خانہ کے لیے خریداری ضرور کر رہے ہیں۔ رش کی صورتحال کچھ اس قدر ہے کہ کئی مقامات پر لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے بھی خاصی مشکل پیش آ رہی ہے۔ بازاروں کے اطراف ٹریفک کا دباؤ بھی بڑھ گیا ہے اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھی جا سکتی ہیں، اور اس وجہ سے سیکیورٹی اور ٹریفک کے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر مجموعی منظر دیکھا جائے تو اس وقت انارکلی بازار عید کی خوشیوں کا ایک دلکش منظر پیش کر رہا ہے۔ ہر طرف روشنیوں کی چمک، چوڑیوں کی کھنک اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں نظر آ رہی ہیں۔ خواتین، مرد اور بچے سبھی عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور یہی رونقیں چاند رات کو ایک خاص اور یادگار رات بنا دیتی ہیں۔ یہاں موجود ہر شخص کی کوشش ہے کہ عید کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ بھرپور انداز میں منائی جائیں۔